Yes, very charming. Good morning to everyone. Yes, thank you, Akul. And God bless you all. And you all keep on learning in the same way. And hope you have completed the question answers of previous chapters. For today, we are going to start the next chapter. So still some students are joining. During this time, I think it is the last period. So your attendance is very less. It should not be like this. Still, some students are joining. Okay, so the topic that we are going to start today, that is why people rebel. So in the previous chapter, we have also discussed about the Indigo revolt, about the tribals revolt, okay, that people were revolting to the policies of Britishers. In previous chapters, we have discussed about various revolts. So here it is also when people rebel. So we have also discussed how Indigo revolt, the peasants, they have revolt against the Britishers. Okay. Then tribal people, they also shifting cultivators, they revolt. Okay. Different tribal groups, they revolt. But that revolts were at the local level only. Okay. The small area, the people revolted in the small area. Yes, bache. So this is not the continuation of that blue rebellion, but it is somewhere linked to that. उससे link जरूर है, ठीक है? Because the अब वो blue rebellion जो थी वो हुई थी 1859 में, but here we are talking about of 1857. ठीक है? वो तो सिर्फ एक local level पे थी. तो वो देख एग्जाम्पल हमने किया था, उसके जैसे बहुत सारी रिवोल्ट्स हुई थी, ठीक है, और भी रिवोल्ट्स हुई थी. तो अभी इसमें जो हम कर रहे हैं कि दैट इज द रिवोल्ट मोर देन एट अ लार्ज स्केल हम कह सकते हैं, ठीक है. जैसे वो सिर्फ एक बंगाल के एरिया में हुई, ठीक है, अगर ट्राइबल पीपल ने की तो उन्होंने सिर्फ अपने एरिया में की, ठीक है. सो नाउ दिस इज द पीपल व्हेन पीपल रिबेल in 1857 and what happened after that कि 1857 में रिवोल्ट हुई. जो पहले रिवोल्ट हुई उनसे थोड़ी लार्ज स्केल पे थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, बिकॉज वी डोंट गेट इंडिपेंडेंस. हमने इंडिपेंडेंस तो 1947 में मिली ना. इंडिपेंडेंस दैट वी हैव गॉट इन 1947. तो 1857 में भी रिवोल्ट हुई थी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमने पहली जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी ये उस टाइम पे, बट वी हैव नॉट गॉट इंडिपेंडेंस. तो क्या हुआ था इस टाइम पीरियड में, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो सबसे पहले कि व्हाट वाज द रीजन कि व्हाई पीपल रिबेल इन 1857, क्या रीजंस थे, ठीक है. तो पिछले चैप्टर्स की ही कंटिन्यूशन में चलेगी हमारी डिस्कशन. जैसे कि हमने डिस्कस किया गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज, ठीक है. ब्रिटिशर्स उनकी बहुत सारी पॉलिसीज थी. जो पॉलिसीज थी, पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, उनका इम्पैक्ट क्या था. जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी डिफरेंट, उनका इम्पैक्ट क्या था पीपल के ऊपर. अब इम्पैक्ट अलग अलग लोगों के ऊपर, इट वाज डिफरेंट ऑन डिफरेंट पीपल. इम्पैक्ट ऑन पीपल, अब जैसे सबसे अगर आपने सेकेंड चैप्टर किया फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इन दैट यू हैव डन कि हाउ इट हैज गॉट दीवानी ओवर बंगाल, इट हैज मेड इट्स प्रोविंसेस, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इट हैज मेड इट्स प्रोविंसेस. देन it has also adopted the subsidiary alliance policies, doctrine of lapse policies, or different policies. So on various people it was having different impact. On peasant it was having different. Then on sepoys, soldiers also, on soldiers, and on people, ordinary people also.
ठीक है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑन फर्स्ट नवाब्स. ठीक है, नवाब की व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन नवाब, वेरियस नवाब. तो वेरियस नवाब्स, जैसे द नवाब्स दे वर लूजिंग देयर पावर according to the policies of Britishers, subsidiary alliance policies, policies of LAP. So which Nawabs, they were under the effect of these Britishers policies. So first it was Rani Lakshmi Bai. ठीक है, so various Nawab they loses their power. So Rani Lakshmi Bai also of the Jhansi. तो Rani Lakshmi Bai, so Lakshmi Bai, he has adopted one son, but Britishers don't want that his adopted son would become the next king. ठीक है, so he wanted, Jhansi की रानी जो लक्ष्मी बाई, she wanted that her adopted son should be recognized as the next heir, कि जो हमारी kingdom है उसका next जो king है वो मेरा adopted son हो. But Britishers they did not accept his demand. तो Britishers उसको accept नहीं कर रहे थे. ठीक है, सो दैट्स व्हाई शी वाज अगेंस्ट ब्रिटिशर, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी. ठीक है, देन नाना साहिब. अब नाना साहिब ही आल्सो द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव. अब वो भी अडॉप्टेड सन था पेशवा बाजीराव का. सो ही आल्सो वांट, क्योंकि बिकॉज एट दैट टाइम अब नवाब की पावर तो सारी किसके पास थी, ब्रिटिशर्स, दे वर कलेक्टिंग द रेवेन्यू. So from where these kings they were getting the income? So Britishers they used to give some part of the revenue to these kings as income. ठीक है, तो Britishers उस revenue में से थोड़ा सा हिस्सा इन नवाब्स को भी दे देते थे as their income. तो नाना साहिब ने भी बोला कि now I am the adopted son of Peshwa Bajirao, so I want that pension that you were giving to Peshwa Bajirao, so I also want that pension. लेकिन Britishers ने क्या किया, they denied, उन्होंने मना कर दिया कि you will not be given pension. So अब because कंपनी सुपीरियर थी, उसके पास पावर्स थी. ठीक है, तो उसके पास पावर्स थी तो उसने उनके अगेंस्ट कर दिया. सो व्हाट आर दीज, ये है, हम कह सकते हैं कि 1857 की रिवोल्ट से पहले रीजंस, ये सारे उनके रीजंस हैं. ठीक है, यस. सो दिस इज 1857 रिवोल्ट, वही हम करेंगे. उससे पहले हम रीजंस देख रहे हैं कि वो रिवोल्ट इतनी लार्ज स्केल पे हुई कैसे. ठीक है, आप इनको रीजंस भी कह सकते हैं कि वेरियस रीजंस फॉर रिवोल्ट, रीजंस फॉर रिवोल्ट. सो फर्स्ट हो गया रानी लक्ष्मीबाई, why she was against Britishers. Then Nana Sahib, why he was against Britishers. Then Awadh, according to the policy of yes bache, who is the student with the name, okay, Ishan. Yes, Ishan. Yes. So first रानी लक्ष्मीबाई, सेकेंड नाना साहिब का हमारे पास एग्जाम्पल है. देन अवध. ठीक है, जो अवध के उस टाइम पे नवाब थे, सो इट वाज सेड बाय ब्रिटिशर्स की नवाब ऑफ अवध ही इज नॉट एडमिनिस्ट्रिंग हिज टेरिटरी प्रॉपरली. ठीक है, कि जो अवध के नवाब है ही इज नॉट प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रिंग, ही इज नॉट कैपेबल, वो कैपेबल नहीं है कि अपनी टेरिटरी को जो प्रॉपरली वो क्या कर पाए, प्रॉपरली उसको एडमिनिस्टर कर पाए. ठीक है, सो वी आर इन फेवर ऑफ पीपल, हम लोगों की भलाई के लिए अवध का जो कंट्रोल है हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स दे हैव एनेक्स्ड, उन्होंने अवध को अपने टेरिटरी की, अवध की टेरिटरी को ब्रिटिश टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया. ठीक है, अंडर द सब्सिडरी अलायंस. ठीक है, पहले ही वहां पे ब्रिटिशर्स की आर्मी तो पहले से ही थी. ठीक है, उस टाइम पे अवध नवाब को रूल करने दिया जा रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होती है कि इफ द किंग इज नॉट हैविंग हिज डॉटर सन,
then his territory will be annexed in British territory. कि अगर किसी राजा का बेटा नहीं है तो उसकी टेरिटरी जो अपने आप वो ब्रिटिशर्स के पास चली जाएगी. तो रानी लक्ष्मीबाई भी अगेंस्ट होगी, नाना साहेब भी अगेंस्ट हो गए. ठीक है, सब्सिडरी अलायंस में कि राजा वाज कीपिंग द कंट्रोल ऑफ हिज जस्ट फॉर द नेम, बट ऑल द पावर्स दैट वर विद द ब्रिटिशर्स वर हैविंग आर्मी. ठीक है, ब्रिटिशर्स की आर्मी भी थी उस राजा की टेरिटरी में. ठीक है, तो सेम वे अवध वाज आल्सो हैविंग द सब्सिडरी अलायंस, लेकिन अवध के नवाब के बाद में टेरिटरी तो ऑलरेडी थी उनकी ब्रिटिशर्स की, देयर आर्मी वाज आल्सो देयर, लेकिन अवध का जो नवाब था उस पर भी उन्होंने बोला कि ही इज नॉट कैपेबल, ही इज नॉट एडमिनिस्ट्रिंग प्रॉपर्ली, तो उसको भी हटा दिया गया. ठीक है, सो इट वाज टेकन ओवर बाय द डलहौजी एट द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम कि वो मिस गवर्न कर रहा है, ही इज मिस गवर्निंग and not taking the proper administration. ठीक है, so these people, they were also against the people of Awadh, they were also against the Britishers. Then company अब और ज्यादा अपनी जो पावर्स थी वो बढ़ाना चाहती थी. Then he was also want to Mughal dynasty came to an end. ठीक है, वो मुगल डायनेस्टी को भी बिल्कुल खत्म करना चाहती थी. हाउ, कैसे करना चाहती थी? ठीक है, मुगल डायनेस्टी को वो कहती थी कि नाउ द बहादुर शाह जफर ही विल बी द लास्ट किंग. उसके बाद नेक्स्ट जो भी उसके सन होंगे दे विल नॉट बी अलाउड टू बिकम द किंग. वो किंग नहीं बनेंगे, दे विल कॉल्ड ओनली प्रिंस, उनको सिर्फ प्रिंस कहा जाएगा. ठीक है, एक तो उन्होंने ये बोल दिया. दूसरा कि जो भी किंग की फैमिली है उनको अर्लियर इट वाज लिविंग इन द रेड फोर्ट, तो उनको रेड फोर्ट में से निकलना पड़ेगा. ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ फैमिली, जो मुगल की फैमिली है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा रेड फोर्ट से, दे हैव टू लीव द रेड फोर्ट. ठीक है, एंड द सन ऑफ जो मुगल एम्परर के आगे सन होंगे दे विल बी कॉल्ड प्रिंस ओनली. ठीक है, दे विल नॉट बिकम किंग, वो किंग नहीं बनेंगे, दे विल बिकम प्रिंस ओनली, वो सिर्फ प्रिंस कहे जाएंगे जितने भी आगे उसके डिसेंडेंट्स होंगे. तो अब कोई भी नया मुगल राजा नहीं बनेगा, नो, देयर विल बी नो मुगल एम्परर. ठीक है, तो ये सारे जो रीजंस थे ये हो गए पॉलिटिकल, जो रूलर्स के साथ रिलेटेड थे. ठीक है, उस टाइम के नवाब्स के साथ रिलेटेड थे. ये सारे रीजंस हो गए कि व्हाई दीज नवाब्स वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ठीक है, नाउ व्हाई द पीजेंट्स एंड वेरियस इंडियन सोल्जर्स दे वर अगेंस्ट दीज ब्रिटिशर्स. ठीक है, और ये भी हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है, ब्रीफली और डिस्कस कर लेते हैं. तो ये होगी इम्पैक्ट ऑन द पीपल, नवाब. ठीक है, फिर सेकंड आता है पीजेंट्स. अब पीजेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट था? पीजेंट्स, हाई टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन देम, उनके ऊपर हाई टैक्सेस इम्पोज किया जाता था. दे हैव टू पे हाई लैंड रेवेन्यू, वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. कई तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो इंट्रोड्यूस किए गए थे. क्लियर? एंड देन द मेथड ऑफ दैट रेवेन्यू कलेक्शन दे वर वेरी रिजिड, वो बहुत रिजिड होते थे. एंड इफ सम टाइम द पीजेंट्स दे वर नॉट एबल टू पे बैक दीज हाई टैक्सेस, फर्स्ट तो हाई टैक्सेस इंपोज किए गए. ठीक है, अगर इन केस एनी पीजेंट ही फेल टू पे द टैक्स, वो टैक्स नहीं दे पाया, तो क्या होता था? देन व्हाट वुड हैपन? क्या होता था? इफ एनी पीजेंट, अर्लियर हाई टैक्सेस वर इम्पोज्ड, बट if any peasant, yes, very good, so they lost their land, तो वो क्या करते थे? उनकी लैंड को उनको मनी लैंडर को, जमींदार को देना पड़ता था. they lost their right on their land. So peasants were also against the Britishers. Then what was the impact on sepoys? Sepoys means soldiers. ठीक है, सोल्जर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? सो सोल्जर्स, अब उस टाइम पे मेनी सोल्जर्स दे वर रिक्रूटेड इन द आर्मी ऑफ ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे सोल्जर्स. ठीक है, और जब वो सोल्जर्स बन गए तो दे हैव टू फॉलो, जो भी अब ब्रिटिशर्स ने सोल्जर्स के लिए रूल्स बनाए हैं तो उनको फॉलो करना पड़ेगा.
दे वर वेरी गिविंग लेस सैलरी, पहले बात तो उनको बहुत लेस पे मिलती थी, ठीक है, वेरी लेस पे, कोई अलाउंसेस जो अलग अलग तरह के अलाउंसेस होते हैं वो भी नहीं मिलते थे, उनकी कंडीशंस जो थी वर्किंग वो भी अच्छी नहीं थी, ठीक है, एंड दे पे अलाउंसेस फर्स्ट ये कम हो गया, कंडीशंस अच्छी नहीं थी, और कुछ न्यू रूल्स, पे कम थी, अलाउंसेस उनके कम थे, पे वाज लेस, अलाउंसेस वर नॉट गिवन, ठीक है, एंड देन दे वर आल्सो नॉट गेटिंग द बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है, हॉलीडेज नहीं मिली उनको, घर नहीं जाने दिया जाता था, तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशन, एंड सम न्यू रूल्स आल्सो, और कुछ न्यू रूल्स भी बनाए थे। अब उन न्यू रूल्स जो उस टाइम पर आए उनका ब्रिटिशर्स की रिलीजियस लाइफ के साथ कनेक्शन था, ठीक है, जो उनकी रिलीजन और कास्ट के साथ उनका वो उनकी जो बिलीफ थे उसको वो खत्म कर रहे थे। कैसे? हाउ दे वर वायलेटिंग देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को खत्म कर रहे थे। हाउ? जैसे इन 1824, सबसे पहले तो 1824 में ये रूल था कि ऑल द सिपाहीज दे हैव टू गो, अगर दे वर अपॉइंटेड इन बर्मा एंड दे वर सेंट टू दैट प्लेस थ्रू सी रूट, उनको सी रूट से भेजा जाता था, बट द सिपाहीज दे वर प्रेफरिंग फ्रॉम लैंड रूट से तो इट वाज वेरी बहुत दूर हो जाता था, सो दे वर सेंट टू दैट बर्मा थ्रू द सी रूट, एंड थ्रू सी रूट, एंड इट वाज द रिलीजियस बिलीफ, और उनका ये रिलीजियस बिलीफ था कि इफ दे विल go across the sea, then they will lose their religion and caste. So it was their religious belief कि if they go across the sea, then they will lose their religion. So their religion, their community, they will not allow them back. उनकी community जो है वो उनको वापस allow नहीं करेगी. So this first rule, ठीक है, तो 1824 में उनको भेजा जाता था, बाद में 1856 में तो ये रूल ही बना दिया उनको, फर्स्ट इट वाज सेंट, पहले उनको भेजा जाता था, लेकिन 1854 में ये रूल बना दिया कि दे विल 1856 में सॉरी, ठीक है, कि 1856 में कि एवरी सिपाही, कि जो भी सिपाही रिक्रूटेड हो रहा है तो ही हैज टू गो, उसको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, he had to agree to serve overseas if required, तो उसको he have to agree to serve overseas, कि उसको अगर overseas if any condition if he has been sent then he has to agree to these conditions, ठीक है, so first this was rule which was against their religious sentiments and the religious belief that the religion is violated, they will lose their religion, and second तो फर्स्ट तो इससे भी सेकंड वी विल डू द नेक्स्ट, ठीक है, तो एक तो इस तरह की कंडीशंस जो थी जिससे कि सिपाहीज जो सोल्जर्स थे वो भी अगेंस्ट थे, ठीक है, अब ये सोल्जर्स और पीजेंट, अब सोल्जर्स की जो फैमिलीज हैं वो पीजेंट्स भी हैं, ठीक है, तो सेम सोल्जर्स और पीजेंट्स दोनों ही, सिपाहीज मीन सोल्जर, तो दोनों ही किसके अगेंस्ट थे? ब्रिटिशर्स के, क्लियर। अब वेरियस नवाब्स they are also against Britishers, peasants they are also against Britishers, various sepoys they are also against Britishers, and ordinary people. Why other people they were against? Because Britishers they were introducing many reforms, ठीक है, in next chapter we will discuss कि which how they bring various reforms. Reforms क्या होते हैं? Reforms are, yes, what do you mean by reform? सुधार लाना, है ना, कि कुछ practices, if there are some practices which are dangerous for our society, which are not good for our society, to change that practices, उन practices को change करना, तो उसको हम कह सकते हैं कि सुधार लाना, कि if any person he is doing the wrong habits,
तो अगर हम उसकी रॉन्ग हैबिट्स को सुधार देंगे तो वी विल रिफॉर्म दैट पर्सन, उस पर्सन को सुधार देंगे, ठीक है। तो सेम वे ब्रिटिशर्स आल्सो वांट टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते थे, वो हमारे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे। हाउ? यस ईशान, बच्चे सिट प्रॉपर्ली। आर यू नोटिंग डाउन द पॉइंट्स? Now continue with this reforms. So various reforms they introduced. So they introduced many law which were not accepted by the people. Which law? ठीक है, फर्स्ट उन्होंने कई laws जो थे, they made many laws such as ban on sati system. Sati system कि when the husband of one woman was died, then she was also burnt alive with the pile of her husband. अपने पति के साथ उसको भी जला दिया जाता था, और वो फिर वो उसको कहते कि सती देवी, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ लॉ, सो ब्रिटिशर्स ने उस पर भी बैन लगाया, बैन ऑन सती सिस्टम। देन दे अलाउड विडो रीमैरिज, विडो की रीमैरिज के लिए भी उन्होंने लॉ बनाया कि दे कैन गेट मैरिड अगेन, ठीक है। तो दीज रूल अर्लियर कि चाहे ये रूल्स क्या थे, ये लॉज बनाए गवर्नमेंट ने, कि आपको भी लगता है कि ये रूल्स जो रिफॉर्म्स किए गवर्नमेंट ने सही थे, ठीक है। मैनी इंडियन रिफॉर्मर्स वर आल्सो इन फेवर ऑफ दीज इंडियन रिफॉर्मर्स। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि कुछ इंडियन रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कि ब्रिटिशर्स से ये लॉज पास करवाए, लेकिन जो रिलीजियस माइंडेड कई पीपल थे, नैरो माइंडेड पीपल थे, दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, ठीक है। लॉज में आ गया जैसे बैन ऑन सती, ठीक है, देन विडो रीमैरिज। So these laws they have passed. So the people they were thinking कि Britishers they are interfering in our religion, कि Britishers जो हैं वो हमारे religion में interfere कर रहे हैं, ठीक है। Earlier they have these laws were in favor of people, क्योंकि ये तो these practices सती though that was not for good our society, वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है। लेकिन some people they were thinking कि Britishers they are interfering in our religion. So second, Britishers they have made compulsory English language, ठीक है। So British language education was also made compulsory, और उसके लिए British language education की जो भी Britishers के schools थे उनमें लोगों the students they have to study the British culture, ठीक है, British language. So ये एजुकेशन भी उन्होंने कंपल्सरी कर दी। देन क्रिश्चियन मिशनरीज, जो डिफरेंट क्रिश्चियन मिशनरीज थे, दे वर आल्सो इंसिस्टिंग पीपल टू कन्वर्ट देयर रिलीजन, वो भी लोगों को इंसिस्ट कर रहे थे दे शुड कन्वर्ट देयर रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है। एंड फॉर दैट दे वर आल्सो ऑफरिंग देम, एंड ब्रिटिशर्स दे हैव आल्सो पास्ड, इसमें ब्रिटिशर्स ने भी एक लॉ पास कर दिया कि अर्लियर क्या होता था कि जो भी अपना religion if they convert the religion then their community they will not give them property, तो उनके कम्युनिटी उनको प्रॉपर्टी का राइट नहीं देती थी अगर कोई पर्सन अपनी रिलीजन को कन्वर्ट कर लेता था। लेकिन ब्रिटिशर्स दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द लॉ इन 1850 कि दैट so that the conversion to Christianity it should become easier, कि वो easy हो जाए, ठीक है। So law has been made and it allow an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors, कि वो अपनी ancestors की property inherit कर पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, conversion to Christianity became easier, कि अगर कोई convert करना चाहता है Christianity में तो वो easy हो गया, ठीक है। conversion to Christianity क्या हो गई, easier. So here space is less, okay. So these were the people. So due to these reforms people were thinking कि now the Britishers they are destroying their way of life, कि they are interfering in their religious practices, ठीक है। So they are interfering in their traditional, कि जिस तरह से वो रहते आए हैं, so the Britishers are interfering in that,
Clear? So all these reasons are clear. So these are, yes, reforms are good. कि जो ये laws pass किए थे ना, ban on sati, widow remarriage, somewhere they were in अच्छी थी वो practices, अच्छी नहीं थी, ठीक है, but the religious minded people, the narrow minded people, they were against Britishers. उनका अपना reason था, ठीक है. The all persons, different groups, they were having their own reason to protest against British. मतलब सबके पास अपना अपना रीजन है, ठीक है. नवाब, they are having their own reasons. Peasants, they are having their own reasons. Sepoys, they are having their own reasons. Different peoples, they are having their own reasons, ठीक है. तो ये different जो अलग अलग religious people, so they are having their own reasons, but all of them, they are against the policies of Britishers, ठीक है. ये different peoples, ठीक है, चाहे वो नवाब हैं, peasants हैं, सिपाही हैं, different religious minded people हैं. So all these persons, they are against, their enemies same one, Britishers. तो सबके against किसके हैं? सभी Britishers के against हैं. So now all these people, they were thinking about this Britishers rule in different way, कि अब सभी जो हैं अलग अलग जगह पर हैं, डिफरेंट जगह पर हैं, लेकिन सभी क्या करना चाहते हैं? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपोज करना चाहते हैं. सो नाउ देन कम्स द 1857 रिवोल्ट, कि कैसे, कि दीज आर द रीजन, बट इंस्टेंट रीजन क्या हुआ कि 1857 के ईयर में ही रिवोल्ट हुई. सो व्हाट हैपेंड कि 1857 को, अब रीजन सब काफी टाइम से चलते आ रहे हैं, है ना. सो व्हाट हैपेंड इन 1857 कि 1857 में ऐसा क्या हुआ. सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट, इफ देयर इज एनी डाउट टिल नाउ, प्लीज लेट मी नो इन एनी पॉइंट. यस बच्चे. Yes. A mutiny becomes popular rebellion. ठीक है. So now these are all the different reasons of different people. Then there becomes a mutiny. ठीक है. So what is mutiny? Mutiny is the revolt by the soldiers. कि soldiers की अलग अलग settlements होती हैं, ठीक है. So if soldiers as a group, they disobey the orders of their head, जो भी उनका military officer है वहां पे, अगर वो अपने military officers के against बोलते हैं, ठीक है, if they are not obeying the orders of their British officers, and उस टाइम पे the British officers थे, अगर वो अपने army officers का order नहीं मानते हैं, then it becomes the mutiny. ठीक है. सो म्यूटिनी क्या हो गया कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स दे डिसओबे देयर ऑफिसर्स. अब 1857 में भी एक इसी तरह की म्यूटिनी हुई, ठीक है. देन दैट म्यूटिनी, वो म्यूटिनी स्टार्ट हुई एक प्लेस से, लेकिन वो स्प्रेड हो गई पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है. और विच स्टेट्स कम्स इन नॉर्दर्न इंडिया? ये म्यूटिनी, ठीक है, म्यूटिनी जो थी ये स्टार्ट हुई थी फ्रॉम मेरठ एंड देन इट स्प्रेड टू होल नॉर्दर्न इंडिया, मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है. सो हैव यू heard about the name Mangal Pandey? One picture also has been picturized on him. Have you heard about Mangal Pandey? Yes, can you tell something about him? Yes, you can unmute yourself, Akul. Yes, what do you know about Mangal Pandey? Ma'am, I don't know, but I have maybe listened his name. Okay, you have seen the movie? Ma'am, which one? Mangal Pandey? Ma'am, no. Okay, so you have heard the name only? Ma'am, yes. Okay, so we will discuss about Mangal Pandey, जिसके की अंडर में
ये म्यूटिनी स्टार्ट हुई. यस, ही वाज अ सोल्जर. ठीक है, he was a soldier in the regiment और there that mutiny started. तो स्टार्टिंग जो थी एक इंसिडेंट से हुई थी जो कि मंगल पांडे से रिलेटेड था. ठीक है, बट विल डिस्कस दिस होल इंसिडेंट इन आवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, बिकॉज टाइमिंग इज गोइंग टू बी ओवर. ठीक है, सो वी विल नॉट एबल टू कंप्लीट, सो वी विल स्टार्ट इट इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सो गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, I hope you have noted down today's points, and when you will read from your book you will underline also. ठीक है, okay, then thank you students, take care and read the next topic also. ठीक है, try to read the next topic that we are going to discuss. Okay, then thank you everyone, take care.